Hey guys, you're watching and listening 9XM Soundcast, the podcast where music inspires. Thank you for the fabulous response. We are number one on Apple Podcasts and Spotify, the TV, film, and the music category India. This is the podcast where we connect and talk to some of the most successful and creative genius of our music industry to find out their creative discipline, to get inspired from them and learn something from them. So today with me, I got one of the most loved voices, uh, Shan. Shan Dada. Thank you so much, Ivan. I've been following your podcast and listening to a lot of the wonderful artists that you've been interviewing and how beautifully you've helped them share their creative thoughts and ideas with you. So I'm all game and all ready to um, to get on this journey with you. Thank So you so much. Thank you. It's totally our privilege, sir. And when you talk about Shan or his songs, you are immediately transported into an almost utopian world free of all sadness, all problems or negativity. That's a very unique craft of your music, or I think I can say that that's all what you are as a human being, full of love, positivity, and happiness. Shantanu Mukherjee for you guys. Eva, I'm already blushing. आपने इतने compliments एक साथ दे दिए. I don't know what to say. लेकिन एक thought मेरे, for a very long time, I always had planned like a live performance where I would need two girls to perform with me. एक का नाम होता Eva, as yours is, और एक का नाम होता Lou, and we'd call the show Evolution. Oh, what a Evolution, which is me. So I thought, चलो शुरू में ही to break the ice, I'll share that silly idea of mine. it's so amazing to see Shan Right, with all in my grays your now. it's lovely. I think that's just amazing. But now, again, once again, a big kudos and thanks to technology that, वरना imagine आज से even 5-6 साल पहले भी अगर ये घर बैठना होता without, not just social media, but also these, various new technologies that are being used so effectively for people to actually make a conversation, be able to, वरना the latency, मैं कुछ बात कहता फिर 5 सेकंड बाद आपके कानों तक पहुंचता फिर आप रिएक्ट करती. बिल्कुल So जो बिल्कुल जो सर. सामने से देख रहे हैं या सुन रहे हैं, for them, the flow would be quite Broken, yeah. broken, but now it's so much easier. So wonderful. Since we're talking about flow, let's go with the flow. And Absolutely, sir. we're सबसे waiting to पहले hear your हम first question. Yes, so as we were talking about the lockdown situation. Yes, the lockdown is on its way out. We have the red zones, we Yeah. have the orange zones, we have the green zones. But the pandemic is far from over. In fact, I think the numbers are becoming higher, stronger, and we are all fingers crossed कि बहुत जल्द कोई क्योर आए, कोई वैक्सीन आए, कुछ इस तरह की चीज आए. लेकिन तब तक ऑफ कोर्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड तब तक शायद यही ऑनलाइन ही गुफ्तगू बातें चलती रहेंगी एंड इसके जरिए ही लोग एक दूसरे से मुखातिब होंगे. बट अंटिल आई मीन वी हैव टू बी टाइम्स आर सच कि अगर कल हमें हंसते खेलते अगर कल नजर आ रहा है तो सिर्फ इसलिए कि आज हम सतर्क रहें, संयम में रहें, सब्र करें और बी पॉजिटिव. Yeah, absolutely right. Can you tell us that, what is the secret of your, what is the source of your happiness or being happy? No, I think, Eva, to a large extent, I've been very fortunate, very lucky to have a very protected and a very good life. I've always met people who, I mean, बहुत कम ऐसा हुआ है मेरे साथ कि किसी ने मुझे समझ लीजिए कि चीट किया है या किसी ने मुझे बहुत ज्यादा दुख दिया या we get bitter as human beings when these experiences happen early in our life. तो हम लोगों पर हर किसी को शक की नजर से देखते हैं, मुस्कुराने से भी डरते हैं कि कहीं फिर रोना ना पड़े. लेकिन आई थिंक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी, टचवुड, कि अब तक ना परिवार में, ना दोस्तों में, ना मेरे जो कॉलीग्स हैं फ्रेटर्निटी में हमेशा प्यार मिला है, हमेशा साथ मिला है सबका. तो कहीं ना कहीं वो दैट हैज रिजल्टेड इन मी बीइंग पॉजिटिव एंड स्टेइंग पॉजिटिव. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप सामने से मुस्कुरा देते हैं ना तो सामने वाले के भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है. बिल्कुल और बिल्कुल. अगर हाँ, मुझे क्या हो जाता है कि मैं कहीं भी हूँ और मैं खुद को वहाँ कंफर्ट दिलाने के चक्कर में सामने वाले को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर आप ही कंफर्टेबल नहीं है, अगर आप आपका मूड सही नहीं है, तो फिर मुश्किल है कि मैं अपने मूड को सही रख पाऊँ. तो
वही मैंने देखा है कि एक कदम आपको सामने से चलना होता है, दैट्स ऑल. And sometimes people, maybe it's ego, maybe it's a lot of baggage that we carry, कि मैं क्यों करूं और मुझसे क्यों क्यों हमेशा मुझसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर बिल्कुल। तो वो थॉट अगर आप हटा हटा देना, मैंने देखा है कि आप सामने से एक कदम रखो, एंड whoever is with you, they are, even if they are known to be tyrants, negative, arrogant, और ये वो सारा सब कुछ हट जाता है. क्या बात Somehow है! they come through very pleased and very happy. I mean, whoever are listening, आप try करो, देखो. वाओ! कभी भी आप ब्यूटीफुल। किसी के पास जाकर आप उनके साथ अगर दो अच्छी बातें कर लो, एक कॉम्प्लीमेंट दे दो, ऑटोमेटिकली they'll be fine. Yeah, I mean, positivity, results in Yeah, yeah. a And positive again, effect. like I said, that I don't have any reason to be negative. देखिए, मैंने बहुत ही कम उम्र में एक अच्छा खासा एक लोगों का साथ मिला, प्यार मिला, एंड इतना कुछ मिल रहा है. You cannot be negative, you cannot be sad, you have to be grateful, thankful. And so it was easy for me. कई लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्रगल का जो सिचुएशन था बहुत ज्यादा था, किसी छोटे शहर से बंबई आना, यहाँ अलग अलग यू गेट चीटेड, यू गेट गुमराह हो जाते हैं, और वो सारी चीजें कभी मेरे साथ नहीं हुई. सो विच इज व्हाई आई डोंट हैव एनी रीजन नॉट टू बी पॉजिटिव. कि बट तना दिल को भी 20 साल हो गए अभी. Imagine So yeah, Tanha it's Dil. been a Like I while. was It's just been a talking to while. Palash Sen Right, right, two right, weeks right, right. ago. We were chatting True, with true, true. Euphoria, and पलाश I तो was just इन अ वे मे बी 3-4 साल मुझसे भी सीनियर है, बट ही इज अगेन वेरी वेरी फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड वेरी पॉजिटिव, एंड डॉक्टर है आफ्टर ऑल. यू नो नहीं, बट वही हम बात कर रहे थे कि वो जो जमाना था और वो जो वक्त था जहाँ पे यू गाइस ब्रॉट अ टोटली डिफरेंट इंडिपेंडेंट फ्लेवर जो कह सकते हैं ना ऑफ राइट. इंडिपेंडेंट म्यूजिक ऑफ इंडी म्यूजिक. यू गाइस initiated the wave of independent music in India, and that was such a golden period for ट्रू, independent music. ट्रू. The thing that you see here, today happening, I mean, even if you talk about the remixes that are happening, that the surge of remixes in today's times, and that point of time, हाँ, कहीं Biddu ना and कहीं ये all. मेरी गलती है. नहीं, बट बिल्कुल हमने कितने एंजॉय किए हैं वो जी. remixes भी. The idea was also not to the idea was to give a contemporary vibe sound, but not to lose the soul of the lyric and the composition. So it was an interesting challenge to do it then. अब क्या हो रहा है कि जो आजकल के जो फिल्मों में जिस तरह के recreations हो रहे हैं, so कहीं ना कहीं the most of the songs are already from a pop space, yeah, from a more True. light frivolous dance. So you're not taking something and then you know transforming it into something else. आप उसी चीज को फिर एक बार दोहरा रहे हो. मुझे ऐसा लगता है कि जब Yeah, yeah. समझ लीजिए ओरिजिनल आंख मारे Mm. लड़की आंख मारे, तो वो भी सिचुएशन वही, ऐसा एक टपोरी डांस सिचुएशन, आप उसी को फिर से उसी जोन पर आपने यू जस्ट रिसाइकल्ड द सेम हम्म. थिंग. चलिए सर, हम और पीछे अगर जाते हैं तो चाइल्डहुड में कैन आई सी द पिक्चर ऑफ योर डैड? इज दैट योर डैड? ओ यस 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 ओह, यस यस. दैट्स जस्ट सो वंडरफुल. जब हमने ये आपने कैमरा या लगाया मैं तो आपको मुझे और बिल्कुल उनको और बहुत करीब सर. आई डोंट नो इफ यू कैन सी हिम बेटर नाउ. या. सो. So my father was a brilliant composer यस, and यस. one of the most I mean, देखिए, success is a matter of chance. There are many amazingly talented people who have not seen the kind of success that some others who probably are not या. as talented. तो तो वो अलग बात है, लेकिन उनकी एक बात जो मैं कभी नहीं भूल सकता. लेटर मुझे पहले तो तब एज अ किड ग्रोइंग अप एट होम वाचिंग माय फादर रोज सुबह उठकर हारमोनियम लेकर वो गाने बनाते रहते थे, या. चाहे 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 उस गाने की कोई खरीदार हो या ना. वो बनाते रहते थे, गाने क्रिएट करते रहते थे. खुद बहुत अच्छा बंगला में बहुत अच्छा लिखते थे. तो वाओ. और गजलों का उनको बहुत शौक था. तो कुछ दिन लखनऊ भी जाकर रहे थे. सो ही वाज अ वैगबॉन्ड लिटरली. ऑफ कोर्स ही वाज मैरिड एंड वाइफ, 2 चिल्ड्रन, बट इन हिज हार्ट ही वाज स्टिल बंजारा जैसे थे वो. टिपिकल और आर्टिस्ट. या. टिपिकल आर्टिस्ट थे, और कहीं ना कहीं इस ये जो दुनियादारी वाली जो ये दौर है, या जिस तरह से लोग आई थिंक ही, unlike me, he could not handle. He may have got, I think somewhere frustration came in,
and he took to you know alcohol and cigarettes, and तो उस तरह से, but I lost him very early. You know, he was only Yes. 43 when I lost him. That photograph is probably when he was just maybe 39 or 40. He was very So young. handsome. Yeah, very handsome. He's I much taller mean, than obviously me. you have got कई लोगों को लगता your था कि हम लोग धर्मेंद्र जी का फोटो क्यों लगा के रखे so क्योंकि good वो सेम looking. हेयर स्टाइल रखते थे थोड़ा सा। बिल्कुल. और मैं उनको उनकी इतनी तारीफें मैं कर रहा हूँ, तो उनका कोई एक गाना उनका बहुत मशहूर हुआ था That will be our इन privilege, द sir. इन Please. 80 में। तो Wow. फिल्म का नाम था शायद। तो मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा, हाँ, मौसम आएगा जाएगा, प्यार सदा मुस्काएगा, है बाहों में तेरे मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना, हो बाहों में तेरे मेरे सजना, सच हो जाएगा सपना, सारा जहां गुनगुनाएगा, मौसम आएगा जाएगा। और इस गाने को गाते गाते मैं एक आई वांट टू टेक यू टू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट ये गाना समझ लीजिए कि ये बना था 1980 में, विच इज टुडे 40 इयर्स अगो। ऐसे उनके मैं आपको एटलीस्ट 15-20 गाने आपको सुनाऊंगा, and you will not be able to find one single similarity to any other song by any other composer, not then, not now. Oh my God. he Amazing. was he was so adamant on being original. मतलब वो ना किसी को सुनते थे कभी, सबकॉन्शियस में अगर उनका गाना True. मेरे गाने से मिल जाए, एक गाना बनाने के बाद हजार बार सोचते रहते हैं, किसी गाने की तरह तो नहीं लग रहा है, किसी गाने की तरह। सलिलदा की बहुत बड़े, मतलब he had assisted Salil Chaudhary ji also Oh, for a good wow. 4-5 years, right from when he was in Calcutta. तो जैसे वो गाना था ना अपना, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, तो अगर आप YouTube में जाएंगी तो यही गाना बंगला में मेरे पिताजी की आवाज में, अरे क्या बात है. ओरिजिनल, मतलब पहले बंगला में बना था। শুধু তোমারই জন্যে সুর তাল আর গান বেঁধেছি, এর আর নেই কোনো প্রয়োজন, তুমি Oh, হাসবে ভালোবাসবে তাই মনের আসরে, ইভেন ও আমার প্রাণ সজনী চম্পাবতী कन्या, इस ऑल्सो बाद में हिंदी में बना था, किशोर दा ने गाया था, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। और उन्होंने कल्याण जी भाई, आनंद भाई जी के साथ भी काम किया असिस्टेंट, और सफर जो फिल्म थी, बिल्कुल. ड्यूरिंग दैट फिल्म ही असिस्टेड देम आल्सो। और सो ही स्टार्टेड वेरी यंग, एंड ऐसा लग रहा था कि बस, मतलब आई मीन I उनके मन know, में I ऐसा know. फीलिंग आया होगा कि 1966 में जब हार्डली he was what, he was 23, he came to Bombay with ऋतिक खटक Hmm. Yeah, जी, yeah, yeah. मतलब Of course. सत्यजीत रे सारा काम खुद करते थे, लेकिन फिर भी जब एडिटिंग आती थी, कुछ चीजें आती थी, सिर्फ ऋतिक घटक से काम बिल्कुल, करवाते थे। बिल्कुल. उनको जब सुनील दत्त जी ने बम्बई बुलाया एक फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए, तो उनके साथ ये बच्चे थे 23 साल के, ये आए थे, बोले ये मेरे कंपोजर होंगे। लेकिन वो बात उस पॉइंट पे बनी नहीं, और पिताजी ने कहा कि अभी बम्बई आया हूँ तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो तब से उनका बम्बई में स्ट्रगल शुरू हुआ, और बहुत जल्द उनको बहुत सारा अच्छा काम मिलने लगा, बट इट वाज ओनली टिल 1980 दैट द फर्स्ट फिल्म दैट ही कंपोज्ड फॉर वाज रिलीज्ड। सो हिज Hmm. स्ट्रगल एंड हिज, वो जो मैं शुरू में आपको कह रहा था ना कि जी. मेरे साथ बहुत आसानी से चीजें हो गई, और उनके साथ स्ट्रगल बहुत लंबा चला। I think his blessings, I think या I सो can आई say थिंक that they टोटली were, टोटली टोटली। yeah, yeah, yeah. Oh my तो God, कहीं ना कहीं it's उन्होंने मेरे लिए एक ब्लूप्रिंट बना touching. दिया कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ हुआ। और एक बात ये है कि उनकी जो प्रतिभा है, his talent, his hard work, I'm not even 2% of that. So like you said, clearly the success that was meant for him has come to me। उसलिए मेरे Wow. मेरे स्टूडियो में एक ही तस्वीर है, and he is my When I saw him, I was musical like, wow, this guide, is my musical guide and musical god, yeah। this is so touching. And sir, like Sure। totally, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपने उनका वो पहला वाला गाना जब गुनगुनाया, तब मैं वही सोच रही थी कि ये मेलेडी कब बनी जी है, जी और जी। आज की तारीख में भी अगर ये मेलेडी रिलीज हो, अगर ये गाना रिलीज हो, इट इज सो फ्रेश, इट नहीं इज नहीं नहीं, सो वेरी फ्रेश, डिफरेंट, इट हाँ डजंट हाँ। साउंड
यू नो कोई पुराने जमाने की जी 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 मेलोडी, जी। इट साउंड सो फ्रेश, मॉडर्न, नहीं, उनका बहुत, उनके सारे, कंटेम्पररी। मैं आपको एक और उनका गाना था, और इस गाने के ज़रिए एक बहुत अच्छी एक ट्रिब्यूट हो जाती है। हम सब अपने ज़िंदगी में किसी न किसी को खोए होंगे, कम उम्र में, मतलब ऑफ दादाजी, कोर्स, दादी माँ, कुछ ना कुछ, और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ होती हैं। तो इस गाने को जिन्होंने लिखा है, निदा फ़ाज़ली साहब, वन ऑफ द ऑफ कोर्स, मोस्ट प्रोलिफिक, वन ऑफ द बेस्ट शायर कहें, लिरिसिस्ट कहें, उनके तो कमाल-कमाल के गाने हैं। निदा फ़ाज़ली साहब की गज़लें हैं, जो जगजीत जी के इतने सुपर हिट गज़लें हैं। बिल्कुल। गाया था इस गीत को मोहम्मद रफ़ी साहब, और नसीरुद्दीन जी पर ये पिक्चराइज़ेशन हुआ था, एक फ़िल्म आई थी शायद 1980, तो पिताजी का म्यूज़िक था। तो इट्स सो ब्यूटीफुली रिटन कि खुशबू हूँ मैं, फूल नहीं हूँ, जो मुरझाऊँगा, खुशबू हूँ मैं, जब जब मौसम लहराएगा, जब जब मौसम लहराएगा, मैं आ जाऊँगा, मैं आ जाऊँगा, खुशबू हूँ मैं। So, I'm so lucky that you have revived, such gems for us. I'm sure the listeners, you guys must check it out again on जी, जी, YouTube. जी, We'll जी. Thank find God it. there's YouTube and This- these You have songs are just all there. revived, yeah, such hidden gems. Yeah, beautiful. So actually ईवा क्या हुआ कि आपका नाम और मेरा नाम जुड़ के जो शब्द बनता है ना, evolution. So because of sitting there, हमारा एक ही कमरा था, एक भाड़े का घर था, जाने को कहीं था भी नहीं, तो या तो वहां था या फिर बाहर सीढ़ियों पे बैठे रहो, और पिताजी की आवाज गूंजते रहती थी कानों पर, उनके कॉम्पोजिशंस, जब उनके दोस्त भी आते थे, तो ऑफ जी, कोर्स वो अड्डा कहें उसे ना, जो भी वो जी, महफिल बनती थी शाम को, तो मोस्टली दे वर लिरिसिस्ट और म्यूजिकल पीपल, और उनकी जो जो डिस्कशंस होती थी ना, दे वर वेरी वेरी प्रोफाउंड, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटेलेक्चुअल, और अलग अलग टॉपिक्स में उनकी जो, एंड बिकॉज दे वर ऑल नॉट नेसेसरली सक्सेसफुल पीपल, but they were all very cerebral, intellectual, very yeah. open minded, liberal, so amazing discussions, amazing वो thoughts जो वो share करते थे आपस में, तो कहीं ना कहीं मेरा वो म्यूजिकल एंड एक सेंस, जो एक Yeah, yeah, सेंसिटिविटी थी yeah, ना, yeah. वो एक इवोल्यूशन, इवॉल्व्ड एक बात आ गई थी तब से, और बिल्कुल। तो सो इट रियली, व्हेन आई वेंट इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आई रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, के ये सब जो बातें हो रही थी, वो दे वर सो, मतलब इतनी खास बातें थी। अब यहाँ बाहर निकल के देखता हूँ तो कितनी आम बातें होती है यार, कितनी टिपिकल फिल्मी बातें होती है, जो मतलब मैं वो बचपन में 7-8 साल में सुन चुका हूँ। सिर्फ वो इट्स ऑल्सो ड्रामेटिक, इट्स ऑल्सो Yeah, ओवर ड्रामेटिक, लोग छोटी-छोटी बात पर ऐसे बिहेव करते हैं कि कौन-सा तोप मार दिया है ना। you're absolutely So right. I had to actually, for me, it was a very strange thing that I had to actually average myself out. Got you, And the got you. other problem was that, for me as a singer, I was extremely mediocre, because of the kind of people who I heard growing up. So, Hmm. मेरी अंदर की confidence as a singer was very low. Uh-huh. Was Which is why for the longest time I never really thought I could, I did a lot of odd jobs, I did a lot of पैसे भी तो कमाने, Yeah, I lost my dad early, we didn't have a home, we didn't, we were वो भाड़े के yeah. घर में रह रहे थे, कहीं ना कहीं, एक you can't just sit home and say कि हाँ मैं सिंगर बनूंगा और जब बनूंगा तब बनूंगा, तो तब तक वो केबल टीवी पॉइंट्स बेचना, या फिर बुटीक में एज अ सेल्स बॉय, जहाँ से भी, जो भी, जहाँ से भी जुगाड़ पैसे मिल सकते Wow. थे, आई स्टार्टेड माय ओन लिटिल बिजनेस व्हिच एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग वेरी वेल। उस बिजनेस का मैं प्यून भी था और प्रोप्राइटर भी था, साइकिल भी था, उसमें जाकर मैं पहले वो प्रूफ रीडिंग कर, आई यूज्ड टू डू डीटीपी, डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो जैसे कि किसी को क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, आजकल तो Correct, ये चीजें ही चले गई हैं, बट correct. विजिटिंग कार्ड्स कहें, लेटर हेड्स से लेकर, at one point we were actually, when East West Airlines एक एयरलाइंस हुआ करती थी, बंद हो गई, so we were doing their उनकी जो द स्टुअर्डेस, एयर Yeah. होस्टेसेस की जो गाइड बुक्स होती हैं, फिर जब जेट एयरवेज शुरू हुआ, so we actually did their challans, I did their whole, a lot of their work, and it's amazing, you know अभी तो जेट एयरवेज भी बंद हो गया है, Yeah. but so this is from the, मैं वो
अर्ली 90s की बात कर रहा हूँ, वो किया। उसके बाद धीरे धीरे माय सिस्टर और मी, हम लोग वो काफी उसी दौरान वी स्टार्टेड डूइंग, Hmm. जिसे कहते हैं ना बैठक शोज, Yeah. तो उससे काफी कॉन्फिडेंस आया। और मैं बचपन से जिंगल्स और एड फिल्म्स के लिए एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू सिंग। Yeah. तो सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ द माइक वाज नॉट अ बिग डील, बट यही था कि जो दिग्गज, जैसे पिताजी घर पे सिटिंग्स होते थे, तो हरिहरन जी, सुरेश वाडकर जी, पंकज जी, तलत जी, बिल्कुल, तलत अजीज जी, बिल्कुल। से लेकर यू नो आशा जी भी हमारे घर आई हैं, एंड वाओ! शी इज ब्लेस्ड अस। तो लता जी के भी पिताजी बहुत करीब थे। तो मैं उस उम्र में, जब मैं 4 साल का था, रफी साहब ये खुशबू में जब वो गा रहे थे, आई वाज देयर in the studio. I don't think any artist of our generation दिस has ever इज़ had the good fortune. मैं तो बच्चा था, मुझे पता भी नहीं था कि कितने ये बड़े रफ़ी साहब हैं। रफी साहब है। और रफी साहब को ये गाना इतना पसंद था कि जिस दिन रिकॉर्डिंग हो रही थी, सोचिए उस जमाने में दोस्ती भी कैसी थी, और ये जो हायरार्की अभी हो गया है कि अरे वो सुपरस्टार है बिकॉज ही इज एन एक्टर, और हम महज बस सिंगर हैं, हम तो उनके लिए गाते हैं। रफी साहब गाना गा रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह सर तभी नए नए यू नो आए हैं। दैट वाज द फर्स्ट फिल्म बाय ओम पुरी जी। इन दैट फिल्म शायद एक फिल्म बनी थी, और दिलीप साहब को रफी साहब बुलाए कि यूसुफ साहब आइए जरा, ये गाना बनाया है, बच्चे ने बनाया है कमाल का, पुत्र ये मानस, चाहे यंग कंपोजर है, 30 साल का है, लेकिन गाना कितना कमाल का है, आप ये जरा सुनिए। तो देयर वाज दिलीप साहब एट द रिकॉर्डिंग, द सुपरस्टार। the superstar. I mean, this is 1980, so he was at the, I mean, he was at the peak of everything. I mean, the most revered even today. But he was there at the recording. मतलब वो वक्त ही इतना अलग था, वो माहौल ही लगता कितना अलग है था, जहाँ लव फॉर आर्ट, इट वाज बिल्कुल एवरीथिंग बिल्कुल अबाउट आर्ट बिल्कुल एंड लव दैट मैड पैशन फॉर yeah, so all that I've seen growing up, so I find कि ठीक है यार, वो कई कई लोग ना आजकल मैं देखता हूँ कि उनकी जो मतलब जो they've gone through a rough time growing up, they really kind of use it to gain sympathy. अरे यार इतना स्ट्रगल किया है इस बच्चे ने, या अरे यार उनके घर में तो इतनी गरीबी थी, ऐसा था वैसा था। आई नेवर थिंक मेरे घर में जितनी अमीरी थी, अ, बहुत सारे अमीरों होंगे जिनके पास ये चीज नहीं है। So maybe yeah, we didn't have the money. Maybe मुश्किल था स्कूल का फीस वीस देना, but we had the good fortune of being my father's son, and the love that he got from the industry, from the stalwarts, from the great people. बहुत बहुत money can't buy that. I can absolutely Yeah, just yeah, say yeah. that, what So you said in the beginning of like, you have always had positive experiences, but I think it's all about the attitude and the approach that you and your sister and your family had, true, towards true, all true, challenges of life. And I think that true. is extremely inspiring. And thank you so much for sharing such lovely, personal notes from your life. My first song, Eva, that sang was an audition, which I didn't know. And it thanks to Adish Srivastava ji, मेरे one of my बिल्कुल, dearest people in the बिल्कुल। world. तो उन्होंने मुझे पहला ऐसा मौका दिया। I mean, of course, the song got released later, but it was from the film बस इतना सा ख्वाब है। And Lovely song, I तो remember. बिल्कुल बिल्कुल, तो उनका उनका हमेशा ये रहा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अगर फिल्म में एक हीरो है, और चलो हीरो खुद गाता तो नहीं है, लेकिन उसकी एक ही आवाज होनी चाहिए। तो कभी एक गाने में कोई और गा रहा है, एक गाने में कोई और, so whenever he could, he used to insist that I should have the same voice. और अभिषेक बच्चन का ये दूसरा फिल्म था, and his first film Refugee had super hit songs, and Yeah. Sonu Nigam had already sung a song for बस इतना सा ख्वाब है। and आदिश जी ने कहा कि यार ऐसा करते हैं कि एक नई आवाज ट्राई करते हैं। और पता नहीं उनके दिल में क्या था कि he got me to sing, and अमित जी was at the recording. Wow. And I was nervous as hell. बोले नहीं नहीं यार वो and everyone knew that Adesh ji, Amit ji are very dear friends. Yeah, तो yeah, वो of तो यार course. मैं रोज मूवीज कर रहा हूँ, गोल्डी एंड ऑल, Correct, they're like correct, family। correct, correct. उसलिए Rose आए हैं, movies. तू बिंदास गा, गाना तेरा ही है, टेंशन मत ले। तो मैं, Terrible, और वो क्या करते थे ना, terrible वो time to. लास्ट का जो रिहर्सल है उसी में से वो टेक कर लेते थे। और फिर Oh, वो एक चलो अभी टेक, और गाता, फिर मैं गाता था, फिर अरे भाई
फिर समझाते थे कि बेटा तेरा गाना हो चुका है, पिछला जो तूने रिहर्सल किया था ना वही हो गया, अभी वो Because टेक during the करता है तो rehearsal, you might not be that nervous or yeah, I'm not that conscious. nervous na. So Yeah, he used that. The song was ये हवाएं of course. जुल्फों में तेरी गुम हो जाए, टिंग 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 टिंग. तो so that's how it started. तो ऑडिशन वहीं से हुआ था. एक बार सनी देओल साहब के सामने उनका गाना गाना था, but he was very cool. सिंह गा दो यार, हिट गाना है, दीवाना मैं हो गया. This was after Gadar, so this was his Indian. It was very very big film. दीवाना मैं ना था, दीवाना बन गया, कब कैसे और क्या अफसाना बन गया, ना तुझे है खबर ना मुझे है पता, जाने क्या कब से क्या हो गया, दीवाना मैं हो गया. आनंदराज आनंद जी का गाना था. So anyway, the second song that I got a chance to sing was when I was called to Chennai by A.R. Rahman. It's a duet with Sukhi ji, one of my favorite singers, all-time Of favorite singers, Sukhvinder course. Singh, and the actor I'm singing for is Shah Rukh Khan. And I'm like, is this happening to me? हो क्या रहा है? फिल्म आई थी 1 2 का 4. Yes, तो of course. उसमें गाना था कि तेरा जन्मदिन और सारा ये जहां जहां देखिए है गजब का समा दर्द आले 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 आले. वो कुछ जो बच्चों के साथ एक Yeah, गाना yeah, था. yeah, Of yeah. course the song didn't get heavily promoted, इतना कि मुझे पूरा गाना याद भी नहीं आ रहा है. तो anyway, so things just started moving very quickly from there. And then of course Amir Khan, since you mentioned that song, of course was a big turning point. फना के लिए मुझे उस साल के सारे awards मिले और बहुत प्यार मिला. And you know that really catapulted me to the, you know, कि हाँ शान भी गाता है. अरे And रे. of course I have to give so much credit to Jatin ji, Lalit ji, to you know to insist कि नहीं, let's get Shan to sing the song. And you know whoever, you know, ये जिनकी भी कुणाल कोहली जी was the director, so many people have to हामी भरनी पड़ती है कि हाँ तो फिर कोई किसी को गाना मिलता है. You had Three Idiots and you had जी Tare जी जी Zameen Par. I mean, जी Bum Bum जी 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 Bole. जी 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 of course, Like, yeah yeah. आज भी the kids, they love Bum Bum Bole, of course. बम बम बोले तो मेरे लिए एग्जामिनेशन था, because Amir Khan was there himself at the Yeah, recording. yeah, yeah, yeah. Because तो मैं he's बहुत singing the हाँ, because he initial sung part. Yeah. the parts in between. So all that one thing, and then Mr. Perfectionist के सामने उन्हीं का गाना गाना was quite something. But of course, again, it went through very easy. There wasn't no. And again, you know, Shankar Ehsaan Loy, again, one of the, I've realized I've sung a lot of songs to them. One of the easiest to sing for. Shankar is, अरे गा रहे, अच्छा है, चल चल चल, next next, superb superb. जान क्या क्या खा के आया आज, बहुत अच्छा गा रहा है. करके you just Like full dose of full dose of positive, like, you know, injection लगा देता था, boost. भम करके. So and so, you know, it used to, Because I things think would happen probably he easily. knows that, singers who come to sing in front of Shankar Mahadevan, they must be like, oh my God, okay, we have to be, हाँ, at but our he never, best. never, you know, of course, because, you know, we used to sing jingles together and we kind of started off together. You know, जब उनका पहला film, they did one song, a crazy story. That Wow. song was Sunny Deol's first production. It was called mm, Divangi or something, something like that. So they had one song they had to do in that film. The music was by Jatinji Lalitji, but they had one song. It was the title track. Uh, Uh, तो ऑल द टॉप सिंगर्स और उनके साथ मैं, बोला मेरे तो अभी दो, एक मुसु मुसु और चार गाने आए हैं, मुझे कहा. बोले नहीं 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 यार, कम ऑन, यू डन सो मेनी जिंगल्स फॉर अस. सो एहसान एंड लॉय वेरी काइंड, एंड दे गॉट मी टू सिंग द फर्स्ट लाइन इन दैट. शी, आप गूगल करके फाइंड आउट करो. yes, yes, इट yes. हैड सम 11 singers at that time, and it starts with my voice of all the people. So it was very funny. Oh, So they have oh, oh. got a lot of love. वही मैं देखिए, घूम फिर के बात वही हो रही है कि बहुत प्यार मिला है, तो there is no reason for me to be upset. अब मैं कहूँ कि पिछले 10-12 साल से शंकर एहसान लॉय ने मेरे लिए कोई मुझे कभी गाना नहीं गवाया, but that will be really really mean and silly, क्योंकि you know there was a time when almost every Of film, be it course, Shankar Ehsaan Loy, be it Vishal Shekhar, be it of course, of Sajid course. Wajid, be it, you know, Pritam Da, Shantanu Moitra. You know, I've got to sing so much for all these wonderful composers. Anand Raj Anand. You know, I might be missing out on so many important names, but you know, we all started out together. That generation, you know, कोई एक दो Of साल पहले, course. कोई एक दो साल बाद, लेकिन एक ग्रुप सा बन गया था.
तो बहुत प्यार मिला इनसे, एंड बहुत सारे हिट गाने किए साथ में। लेकिन आपने बम बम बोले की बात की है तो थोड़ा सा हो जाए। Oh, thank you so देखो much. देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, अरे बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं, हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी, खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन लो, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। Wow, I can just say that, this song is your chance to kind of perform like Kishore Da, in the spirit of Kishore Da. What do you say? The carefree and वो मस्ती वाली नहीं, ऑफ spirit कोर्स of किशोर दा इज Kishore माय Da. गुरु, किशोर दा हैज ऑलवेज बीन माय इंस्पिरेशन। और जिस तरह से वो गाने में जो अलग अलग चीजों की तड़का होती है ना, तो द वन थिंग दैट यू, वो जैसे नमक होता है ना, यू कांट सेंस इट व्हेन यू व्हेन यू ईट। आप कभी वो ना, द नमक इज परफेक्ट, तो वो होता है जान, एक एनर्जी। तो वो एक एनर्जी जो वो रखते थे ना, समझ लीजिए कि अगर गाना दुखी भी हो ना, तो वो मतलब बहुत दुखी में भी उसमें एक एनर्जी हुआ Hmm. करता था। Hmm. जैसे Hmm. मैं हम जैसे मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। तो कह रहे कि मेरे नैना सावन भादो, मतलब मैं, मेरे नैना रो रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा दिल प्यासा है। कितना दुखी, कितनी दुखी बात है। अगर मैं ये गाना गाता, ऑनेस्टली अगर मुझे ये गाना मिलता, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, ऐसे करके गाता। तो आप समझ रहे हो। लेकिन आ, ये तो ऑब्वियस है ना कि आप एक दुखी दुखी हो, हम्म लेकिन सुनने वाले में जब आप उस गाने को कोई सुन रहा है ना, जो एनर्जी आप दे रहे हो ना उसको, उसमें वो आपकी सेंटिमेंट समझ रहा है, लेकिन आप इतने लाचार या आप इतने, मतलब बेबस या एज अ ह्यूमन बीइंग, you are still strong. So now also when I hear Yeah, certain yeah. Now that songs I na, remember certain songs of, say, I mean, popularly Rajesh Khanna's songs so many of his of sad songs, Anuradha or yeah, any of these songs, yeah. I mean, now he I, doesn't make yeah, it इतनी सिसकियां लेकर इतना, वो कभी भी बिल्कुल, आप नहीं देखेंगे कि आप सोचिए कि and in fact it's very positive yeah, जिस तरह yeah. से वो गाते हैं ना A very कि philosophical. yeah, वो जो Hmm, राय स्माइल जिसे कहते हैं ना, कि अपने अपने गम पे मैं हंस रहा हूँ, वो एक चीज थी उनकी। कि जैसे मैंने शुरू में चिंगारी निदा कोई फाजली फड़के, साहब की yeah, बात की। yeah, yeah. निदा साहब क्या का ही लिखा हुआ, और हम सब के फेवरेट पंचम दा का एक गाना मुझे याद आ रहा है, किशोर दा ने गाया है कि क्या था गाना, अ, कभी पल कभी पलकों पे आंसू है, कभी लब पे शिकायत है, मगर है जिंदगी फिर भी मुझे तुझसे मोहब्बत है। सो दैट वाज द स्टाइल। आई थिंक इट सम्स इट अप कि ठीक है शिकायत है, लेकिन जिंदगी में एज लॉन्ग एज दिल में वो मोहब्बत है, चाह है, तो एवरीथिंग इज गुड। तो उसमें Wow. उतना आपको, डोंट मॉक एन इमोशन, लिव द इमोशन। एज अ Hmm. सिंगर यू डोंट नीड टू मॉक द इमोशन। कि रोमांस है तो शुरू शुरू में जब मैं, दिल नहीं करता था कि मैं ज्यादा उतना भर भर के उसमें हंस की रोमांस डालू, लेकिन कभी बार वो वांट थी, और Correct. लोग कहते नहीं नहीं ऐसा चाहिए, ऐसी गाओ, तो हो जाता था। लेकिन बट आई लर्न दैट फ्रॉम ऑल द ग्रेट्स। जैसे ज्यादा हरकत, ज्यादा Hmm. कारीगरी Hmm. करने से क्या हो जाता है कि वो जो आपकी सिंगिंग लोग डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपकी Yeah, the सिंगिंग जो है। sentiment. Yeah. पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय द सिंगिंग, बट Hmm. दे आर नॉट Hmm. इम्प्रेस्ड बाय द सॉन्ग। Hmm. As a singer, for me it is very important that the song is loved more than me Yeah. as a singer. Yeah. Yeah. So I could add जैसे जैसे ढूंढता हूँ मैं हर गई जो कहीं मुझे, वो सभी मुड़कियां उड़ गया,
Yeah. बट वो जरूरत नहीं है, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कहीं मुझे मिली ही नहीं, जिसे मेरे प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ. And you तो sang in a way a boy, a non-singer would sing. yeah, Just a that is just a very young important. boy in love True, would sing. true, 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 Like, true. a Because hero he's not would a sing. singer. Why would Yeah. you do that? Yeah, yeah, जिसे yeah, yeah. ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कहीं मुझे मिली है And नहीं, hence ये भी तो कर we सकता can हूँ. relate. But I why mean, do that? uh, हाँ, the क्योंकि वैसे भी audience can you know, relate. yeah. So so these things I've learned from the greats. I'm sure they could do all that. I mean, you know, रवि साहब ने कैसे कैसे मुश्किलात, कैसे क्या मधुबन में राधिका उन्होंने गाया. I'm sure वो हर गाने में वो भर भर के ताने डाल सकते थे. But you know, but he would sing it very simply and very Oh, easily. his romantic So songs. I mean, if you listen to it, oh, the way ah, with such oh, casual attitude and that. amazing, amazing, amazing. ना जा कहीं अब ना जा दिल के सिवा, है यही दिल पूजा तेरा, ओ मेरे हमदम मेरे दोस्त ना जा. अब Yeah. कैसे कोई जाए बताइए. क्या बात है, sir. Thank you so much. We are just So when you so. learn from them, so I feel, you know, today, you know, of course there's a new breed and you can't keep, you have to find your own space. I won't be a गरीबों का किशोर दा, nor will I be a गरीबों का रफी साहब. मैं अपने स्टाइल में गाऊंगा, but of course their influences are Of there course. within me. So कहीं ना कहीं aesthetics जो उनकी थी ना, एक आवाज की जो एक खूबसूरती है ना, that is बिल्कुल. very important. Sonically your voice should not, अगर गाना आप ऊंचा भी गा रहे हैं तो उसमें खराश के साथ या फिर उसमें आप चीख के गाएंगे तो वो बिखर जाता है गाना. So you Hmm. have to keep the aesthetics. So even if you're singing a high song, it should not sound like Udit ji. बिल्कुल. ऊंचा गाना भी गाते हैं, जब आप उनके साथ सुर लगाते हैं पता चलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो काफी ऊंचा है यार. हाँ, हाँ, बट हाँ. उनको लगता है कि हंसते हंसते गा रहे हैं, देखिए. सो यू लर्न फ्रॉम एवरीवन. शानुदा की जो पिच परफेक्शन थी, यू नो, जब वो गाते थे, आप गाते तो लगता है अरे ठीक है, सिंपल गाना है. पर जब साथ में गाते हो रियलाइज करते हो कि सो स्मूथ, like silk, like chocolate. Abhijit Da, these are also my, you know, Yeah, they are all of my course. seniors. Abhijit Da ki jo sense of timing, you know, he never drags. He's always on the beat, Beats. which gives you a lot of energy. जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ये भी हो सकता है, लेकिन जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, ओले ओले. So he gets that Perfect. energy, that verb. So you got to pick up the best of the best. So Oh, if I'm going to pick up Uditji's casual smile, I'll pick up Abhijit Das, you know, always on time, and I should pick up Shanuda's, you know, bang on pitching. And then I can be a singer if I am going to be a singer. So they were my seniors. If I cannot be better than that, or at least somewhere close there, then I can't call myself a singer. oh, yeah. I mean, those were the times that, oh, it was not Yeah, at yeah, all yeah. easy. And The yet you have way to have things your own have style. become तो slightly ये easier. सारी Yeah. चीजें, you know, आई विश आई मैं और रियाज करता, थोड़ा और सुरों पर और काम करता और मेहनत करता. वो मैं इतना नेचुरली सब कुछ हो रहा था, तो उस या टाइम या पे उस अब पर ध्यान आपको नहीं उस दिया. वक्त इतने प्रोजेक्ट्स ही बैक टू बैक हाँ, आई वाजंट मिलते रहे तो एक्सपेक्टिंग दैट दिस वाज टू, यू नो, योर. कि धम करके मेरी गाड़ी इस तरह से शुरू हो जाएगी. लेकिन मच लेटर, बाय द टाइम आई इन माय 30s आई स्टार्टेड एक्चुअली वॉइस ट्रेनिंग एंड सुरों पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू किया. आई मेट माय गुरुजी उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, और उनके पास जाकर पता चला कि मैं कितना ज्यादा कूड़ गायक हूँ. लेकिन उनसे उनसे सीख सीख कर आई एम, थैंक गॉड आई मेट हिम, एंड थैंक गॉड दैट, यू नो, उनका आशीर्वाद है मेरे साथ कि, यू नो, सुरों पर और थोड़ा सा और ध्यान देना शुरू किया. एंड आई एम स्टिल, ऑफ कोर्स आई एम स्टिल वेरी बैड, बट आई एम स्टिल लर्निंग, गेटिंग बेटर. I've actually had a great, I mean, no complaints again. Like even songs like बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया से ढूंढूं. या फिर प्योर जो, यू नो, सूफी स्टाइल का, जैसे तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे, तेरे नैना नैना. ऑफ कोर्स आज की तारीख में we were missing that versatile kind of a Harfan Mola artist until, of course, the great Arijit Singh came along, and he's pretty much covered a lot of different styles. And especially जब मैंने उनका वो एक अभी गाना तो exactly याद नहीं आ रहा, लेकिन सबते बिन 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 ऐसा कोई एक अरबी गाना उन्होंने गाया था या फ्रॉम in पद्मावत. Padmavat. My Oh God, my I God, thought कि what मुझे a लगा song.
मुझे लगा कि कोई Some कोई Arabic singer, अरबिक yeah. सिंगर को बुलाए Same हैं here. यार टू सिंग इट. Same here. So I said Binte bow Dil. down. I mean Binte he's Dil. much Oh, younger and so but I was really amazed at that. it's such an My only amazing grouse thing is that, कि you जो know, yeah. आप उनकी जो खासियत या जो अच्छी चीजें हैं ना, जो हमारे नए सिंगर्स हैं, Hmm. उस अच्छी चीज को आप पकड़ो कि कैसे हाई नोट्स पे भी उनकी आवाज पतली नहीं होती है, कैसे ही एक गाने के सोल तक पहुंच जाते Soul. हैं, जो Hmm. थोड़ा सा Hmm. वो इनंसिएट जो कम करते हैं Hmm. शब्दों को, Hmm. एनर्जी थोड़ा सा कम रहता है देन Hmm. इट शुड Yeah. बी. तेरा ध्यान किधर है, Yeah. लिटिल मोर, Yeah. Yeah. इधर Yeah. आ हीरो इधर है, थोड़ा सा लेट बैक है, Yeah. चलो दैट इज आल्सो एटीट्यूड. Yeah. But I feel that कहीं ना कहीं that it becomes more positive when you show a Yeah. little more Yeah. excitement. Yeah. 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 It Yeah. Yeah. becomes more playful, it becomes more energetic. और जब हीरो डांस कर रहा है ना तो उसके साथ वो मैच हो जाता है Hmm. Hmm. कि वो पागल की तरह नाच रहा है यार. Hmm. Hmm. तो कहीं ना कहीं in that state he will, that Hmm. is I No, probably I just think absolutely. so everyone is now in that Yeah. जैसे कि नींद की गोली लेके गा रहे हैं. नहीं, नहीं, वो नहीं, है नहीं. वर्ड्स की थोड़ा सा और क्लैरिटी होनी चाहिए. Hmm. You should be able to get your words more clear. So take the good things from someone. Hmm. Don't pick up the wrong uh, aspect of singing from the person, because that is easy. जो चीज जिस सिंगर में जो चीज एक नकल की चीज होती है ना, उसको Hmm. आपको भी नकल करना आसान हो जाता है Hmm. ना. बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल. तो वो आप कर लेते हो और सबको लगता है कि यार देखो मैं भी अरिजीत जैसा साउंड कर रहा हूँ, बट Hmm. इट्स नॉट ट्रू. आई मीन कई लोगों को लगता है किशोर दा थोड़ी बेस में गा देते थे, Hmm. Hmm. कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या. इस गाने को मुझे याद है जब मैंने कहीं ऑर्केस्ट्रा में, बहुत पॉपुलर था ना बिल्कुल, 83 में, बिल्कुल. कहीं किसी ने गाया तो वो जैसे चेहरा है या चांद खिला है, रूप गनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या. तो लग रहा है ये किशोर कुमार हो गए. Trying to sound like, Yeah, just by making your voice heavier. But he was not के forced based नहीं डालते थे वो, ऋषिदा को ट्रिब्यूट देते हुए एक गाना के जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले. तो बिल्कुल ही लिव्ड एवरी मोमेंट किंग साइज, चाहे बिल्कुल. ऋषि कपूर की बात करें, शायद किशोरदा की बात करें, एंड दैट्स हाउ वी शुड बी. तो यही अगर कोई और जीवन के दिन, तो इट किल्स इट. यू सिंग फ्रॉम द चेस्ट, बट यू डोंट उसको जबरदस्ती का आप बेस ना डालो और फिर कहोगे देखो मैं किशोरदा की तरह गा रहा हूँ. तो उसी बिल्कुल. तरह से वन शुड नॉट डू दैट. एंड वी शुड ट्राई एंड फाइंड आउट द बेस्ट थिंग्स अबाउट एवरीवन. एंड उसका अगर हम 30% 40% भी खुद की सिंगिंग में ला सकते हैं, तो वी विल ओनली इम्प्रूव, बिकॉज वी आर पिकिंग अप ऑल द राइट थिंग्स. आई कीप लर्निंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम पीपल जो जो बहुत आई एम हैप्पी टू शेयर दैट. जैसे एक बार हम साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उदित जी मेरे साथ थे, और उदित जी और मैं कुछ बात नहीं बन रही थी. अनु जी का रिकॉर्डिंग था, अनु मलिक जी का रिकॉर्डिंग था. आई थिंक वो गाना था जैसे जब हंसना रोना हो वो प्यार करे, अरे! जिसे पागल होना है वो प्यार करे, इस तरह का गाना था. तो इट वाज अ मल्टी सिंगर सॉन्ग. Yeah, yeah. तो तो पता नहीं क्यों मैं वो जिसे हंसना रोना है, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था, वो सुर नहीं लग रहे थे. तो उदित जी सामने ही थे मेरे. तो उदित जी बोला एक सीक्रेट बताऊं आपको. तो मैंने कहा हाँ उदित जी बताइए. भूल जाओ, सुर के बारे में मत सोचो, वर्ड्स को सोचो. जिसे हंसना रोना है वो प्यार करे, आसानी से आ जाएगा. आहा! जिसे पागल होना हो वो प्यार करे. तो अगर वो प्यार इतना मत सोचो, वो प्यार आ ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ताल भी आ जाएगा और सुर भी आ जाएगा. तो इमेजिन दैट. आई मीन दीज आर ग्रेट पीपल. अगर वो चाहते हैं तो वो मजाक, मतलब वो मजा लेते ना, कि बिल्कुल, देखो बिल्कुल. नवसिखिया बच्चा आया मेरे सामने, सामने माइक लगा रहा है, देखो इसका गाना नहीं हो रहा है. बट ही That एक्चुअली mentor, that spirit of being a या
So which is why, I've always, from all my seniors and contemporaries and everyone, itna pyar mila hai, itna apnapan mila hai, that I feel blessed. And which is why I think I'm happy to give that positive vibe to, to Yeah. whoever I can. Why not? No, but this rare virtue of, honesty and yeah, being transparent, and yeah, that's just a very Yeah, yeah, basic yeah. thing of for an artist, for a good artist. True, So true. yeah, and one of our favorite songs from Jab We Met, Pritam Das. Of course, of course, of course, of course. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, आओ खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, आओ मीलों चले जाना कहाँ ना हो पता, वो हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते. Oh my God, beautiful. Thank you, sir. Thank you so much for being on the Thank you, Iba. podcast, for connecting with us remotely, and thank you again for being a part of the song Desh Mera for Spot Lamp. Thank you so much. Thank you so much. And this is my first ये headphone लगा के यार. I think this is working well. Only Yeah. it keeps shaking. That's the only thing I have to kind of hold it tight. But I think I'm going to do this for my. अभी मेरे Yes. आने वाले हर podcast या interview या जो भी हो उसमें आप देखेंगी कि ये लगा कर रहा हूँ. You learn Bilkul. something every day. So I learned this Oh, today. So it works lovely. better. So we have already, learned so much from you today, and we have already got an idea of, your creative discipline. That is one thing this podcast is really is always focusing on. Trying to True. understand the creative discipline of artists. So I think you have already told us that, but if there is anything more to add uh, नहीं मैं for वो बात जो मैं listeners. मजाक मजाक में शुरू में किया था ना. I think for everyone, I mean, of course, I'm sure most of the people who are watching or listening to this podcast are people who are interested in music, but I think you cannot segregate things. As a human being, we are सब कुछ मिलाकर इंसान जो है उसकी पर्सनालिटी बनती है, उसकी उसकी persona बनती है. तो म्यूजिक के साथ साथ हर चीज में we should always try to evolve. वही Evolve. इवोल्यूशन में बात आ रही है. तो अगर हम जैसे कल थे वैसे आज ही हैं, तो फिर why we, फिर हम कल ही खत्म हो जाते. सबको तो जाना है ही. We are all mortal beings. No one is going to live forever. But as we keep living, if we can keep growing a Growing. day at a time, a little bit at a time, for which we have to be open, for which we have to be able to, not be rigid कि नहीं यही है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है. तो थोड़ा सा we have to be open to listen to people and share our ideas. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कुछ कहते हैं ना, तो वो जो जोड़ के आपको कुछ वापस कहता है, you kind of grow with that. So that is Hmm. all. Evolution should carry on. Wow. No, Not we should absolutely. not start जिसे कहते हैं ना रिग्रेस नहीं करना चाहिए. Yeah. प्रोग्रेस करना चाहिए इंसान को. हमेशा Rigidity नहीं होनी प्रोग्रेसिव चाहिए. सोचनी चाहिए कि हम ये जो रिलीजन को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, एक दूसरे को लेकर, छोटी छोटी चीजों पर ये दंगे फसाद झगड़े, चार पैसे कोई और कमा रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर आप Ego. आप अपना मुनाफा ढूंढते रहते हैं हर चीज में. तो वो छोड़ दीजिए. लाइफ में आप जो सीखते हैं, लाइफ को जो आप जिस तरह से आप लाइफ को जैसे आप समझते हैं ना, दैट शुड कीप चेंजिंग. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट एंड द चेंज शुड बी Wow. टुवर्ड्स अ बेटर पर्सन, a person who can live in harmony with everyone, a person who can share joys and happiness. तो उस तरह से जीना है. उसके बारे में जैसे अभी मैं ये जैसे लग रहा है कि मैं कोई sermon दे रहा ना, कोई कोई क्या कहते हैं उसको, सत्संग में आ गया हूँ, बिल्कुल, ऐसा नहीं होना बिल्कुल, चाहिए. इट शुड बी इन बिल्कुल, योर पर्सनैलिटी. ये बिल्कुल. बोल के नहीं होना चाहिए. यू शुड लिव इट दैट वे. कई लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में दे डोंट अप्लाई टू themselves. They are the worst. No, 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 you're So bang on, and it's not important that जब भी मौका मिले हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम बड़ी बड़ी सीख देंगे, सबक देंगे लोगों को, ये करेंगे वो करेंगे. हो जाता है एक उम्र के बाद ना, सब में वो बात, अभी बाल सफेद होने लगे हैं ना, तो यू स्टार्ट बिकमिंग बिट ऑफ
बाबा जी, लेकिन यू शुड पुट इट इन योर लाइफ. किसी और को सबक दो Absolutely. ना दो, खुद सबक लेते रहो, सीखते रहो. Bilkul, sir. That's it. And I must say that, your the way your smile is infectious. I'm sure your these talks, these thoughts of yours are definitely going to infect our listeners. That's the prayer. And thank you again. Thank you so much for the love that you have shared. I mean, we are Thank you. actually interacting for the first time in our life, but True. it's been We just so wonderful not at all, giving you not at all. all the love from the entire team of 9XM who just love you. Ah, And sweet. Thank you, yeah, thank you, thank you, absolutely, thank you so much for being on the podcast. thank you. Yeah, thank you so much, Uh, sir. Thank you so much.